یہ جتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے، اور سب سے ضروری اعلان، جتنے بچے جو ٹیبلو میں حصہ ہے جن کا، اور جتنی لیڈر ٹیم ہے، آپ سبوں سے ریکویسٹ ہے، خدا کے کلام سے زیادہ آپ کا میک اپ، آپ کی ڈریسنگ ضروری نہیں ہے، سب یہاں پر آ جائیں، سب جلدی سے یہاں پر آ جائیں، کسی بھی کمرے میں ہیں نکل کے یہاں پر آ جائیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ ادھر آئیں، آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ٹیبلو دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آئے، خدا کا کلام سننے کے لیے آئے، سبھی جلدی سے ادھر آ جائیں۔ کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں؟ کتنے لوگ ٹیبلو دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ زبردست، اپنے لیے زوردار تالیاں لگائیں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔ آپ بڑے خوبصورت چہروں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اتنی گرمی میں آپ اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کے ساتھ، گھروں کو چھوڑ کے اپنے بال بچوں سمیت آئے ہیں تاکہ خدا ان کے کلام کو سنیں۔ جتنے ٹیبلو کے بچے ہیں ان سبوں کو بلاؤ ندی، ادھر آ جائیں سبھی، سب مل کر خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم 3 آیات کو سنیں گے۔ سب سے پہلے سلیمان بادشاہ کی امثال، حکمت کی کتابوں میں سے سلیمان بادشاہ کی امثال، اس کا 11 باب، اس کی 11 آیت کو خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ماسٹر راشد کے ساتھ مل کر سنیں گے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے سلیمان بادشاہ کی امثال، اس کا 11 باب اور اس کی 11 آیت کو خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور قبول کریں گے۔ سبوں کو ادھر لے کر آئیں، سب آئیں بچے، سب جلدی سے آ جائیں۔ ہاللیلویا، غور سے سننا ہے آپ نے، بعد میں نے پوچھنا بھی ہے آپ سے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ جی، امثال کی کتاب، اس کا 11 باب اور اس کی 11 آیت کو خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ہم سنیں گے، قبول کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ غور سے سنیے گا، ادھر ادھر تکنا بند کریں، خدا ان کے کلام کی طرف دھیان لگائیں۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے۔ زوردار آواز کے ساتھ بولیے، راست بازوں کی دعا سے شہر کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے۔ لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویا، تھینک یو ماسٹر جی۔ نہیں بس 11 آیت کو اب ہم پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 13 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو بہن آستر کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ رومیوں کی کلیسیا کے نام، پولس رسول کا خط، اس کا 13 باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ بہن آستر اویلیبل ہے یہاں پر؟ اوکے، بھائی ندیم کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی پہچان ہو رہی ہے آج۔ ہم سٹیج پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، ہم سٹیج پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، زوردار آواز کے ساتھ ہاللیلویا کا نعرہ لگانا پسند کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے اندر ہچکچاہٹ ہے، ہمارے اندر پریشانی ہے، ہمارے اندر جھجک ہے۔ 100 روپیہ منگنا ہوئے تو ویکھو کی میں جیب کھول دی۔ ہاں جی بھائی جان، جی بہن پڑھیے گا 13 باب پہلی 2 آیات، مائک لے لیں۔ رومیوں کی کلیسیا کے نام، پولس رسول کا خط، اس کا 13 باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ آج کے زندہ کلام میں سے آج کی ہم تلاوت کریں گے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا کیا رہے؟ جس سنو گے تو پتہ لگے گا، کیا رہے؟ تابعدار رہے۔ کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ جو حکومتیں موجود ہیں وہ کس کی طرف سے مقرر ہیں؟ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ یا آپ سیکھ کر جائیں گے یا آج میں آپ سے سیکھ کے جاؤں گا۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے،
जो कोई हुकूमत का सामना करता है किसका मुखालिफ है? खुदा के इंतजाम का, खुदा का मुखालिफ है। और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। जो मुखालिफ है वो क्या पाएंगे? आमीन आमीन। अब हम तीसरी तलावत को भी सुनेंगे। आज हम 3 तलावतों को पढ़ेंगे, पूरी 3 तलावतें पढ़ेंगे। कौन तलावत करना चाहेगा? पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, तीमुथियुस की कलीसिया के नाम, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत। कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। कौन पढ़ना चाहेगा? किसके हाथ में फोड़ा है? जी आप आ जाएं। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। किसके लिए की जाए? मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां किसके लिए किए जाए? सब आदमियों के लिए की जाए। बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। हालेलुया। बादशाहों के लिए, आला मर्तबा वालों के लिए, ताकि हम क्या करें? कमाल संजीदगी के साथ क्या करें? कमाल संजीदगी के साथ खुदावंद में आराम पा सकें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। बैठ जाएं आप। सो मेरे अजीजों, हमने रोमियो की कलीसिया के नाम खत में 13 बाब उसकी पहली 2 आयत में पढ़ा कि सब हुकूमतें किसकी तरफ से हैं? खुदावंद की तरफ से। जो हुकूमतें मुकर्रर की गई हैं वो किसकी तरफ से हैं? खुदावंद की तरफ से। जो हुकूमत के इंतजाम के खिलाफ है वो किसके खिलाफ है? खुदा के खिलाफ है। जो हुकूमत के खिलाफ है वो किसके खिलाफ है? खुदा के खिलाफ है। सो कौन चाहेगा कि खुदा के खिलाफ हो? क्या कोई है? फिर हमने पढ़ा तीमुथियुस के नाम खत में कि सबसे पहले पौलुस रसूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूं कि दुआएं, इल्तिजाएं, दरखास्तें, मिन्नतें, शुक्रगुजारियां किसके लिए की जाएं? किसके लिए की जाएं? सब आदमियों के लिए। सब आदमियों के लिए। किसके लिए? सब आदमियों के लिए। बादशाहों के लिए, आला मर्तबा वालों के लिए, बादशाहों के लिए और आला मर्तबा वालों के लिए, ताकि क्या करें? हम कमाल फरोतनी के साथ, संजीदगी के साथ आरामदेह जिंदगी गुजारें। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ आ रही वो हाथ खड़ा करे। हमने पहला हवाला जो मास्टर आशर ने पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था? हाथ खड़ा करना है। किसने सुना था? 2-3 ने सुने हैं। किने किने बैंक चो कर्जा लेना है? हाथ खड़ा करो। सारे खड़ा कर लेना। किसने सुना था? 3-4 लोग ही हैं। इंसाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 11 आयत को क्या लिखा था उसमें कि रास्त बाज की दुआ से शहर का क्या पाते हैं? सरफराजी पाते हैं, इकबाल मंदी पाते हैं। लेकिन शरीरों के बोलने से क्या होता है? शहर बर्बादी आती है। यहाँ पर 2 अशखास का जिक्र है। 2 लोग हैं, दोनों के बारे में जिक्र है। दोनों क्या करते हैं? बात करते हैं। दोनों बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा बोलना, हमारा बात करना, हमारा दुआ करना ये बड़ा मायने रखता है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। सो रास्तबाज जब दुआ करता है तो क्या होता है? शहर सरफराजी पाता है, सरबुलंदी पाता है, कुव्वत पाता है। शहर क्या पाता है? सरफराजी पाता है, अक्लमंदी अकबालमंदी पाता है। लेकिन जब शरीर बोलता है तो क्या आती है? बर्बादी आती है। क्या आती है? बर्बादी आती है।
यानी कि रास्तबाज जिस इलाका में हो, वो इलाका, वो शहर, वो गांव, वो कस्बा, वो मुल्क, वो इलाका, उसका खानदान, वो क्या पाता है? सरफराजी पाता है। लेकिन शरीर जिस खानदान में होता है, उस खानदान में वो इलाका, वो खानदान, वो शहर, वो कस्बा, वो गांव, वो मुल्क, उसमें क्या आती है? बर्बादी आती है। क्यों आती है? क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है जब रास्तबाज दुआ करता है तो शहर क्या पाते हैं? सरफराजी पाते हैं। क्या पाते हैं? सुते के जाग दे, सुते के जाग दे, अगर जाग दे तो जवाब दो। शहर क्या पाता है? सरफराजी पाता है। कैसे पाता है? जब रास्तबाज दुआ करता है। सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में तवारीख की किताबों में से पहला सलातीन उसका 16 बाब, वहां पर एक बादशाह का जिक्र है। कितने लोग उस बादशाह के बारे में जानते हैं? अकीयब बादशाह के बारे में लिखा है कि अकीयब बादशाह ने सारे बादशाह जो उससे पहले आए, बनी इसराइल में जितने भी बादशाह उससे पहले आए, उन सब से ज्यादा खुदावंद को गुस्सा दिलाने वाले काम किए, घटिया काम किए। उसने यसीरतों को बनवाया, उसने बाल के देवता को पूजना शुरू किया, लोगों को मजबूर किया, यसीरतों को बनवाया। क्या है? शरीर की बोलने से शहर की, मुल्क की बर्बादी होती है। क्या होती है? बर्बादी। जब बादशाह बोलता है तो लोग काम करते हैं, उसके वर्कर, उसके नौकर, उसके ख्वाजा सरा, जितने सिपाही है, जब वो ऑर्डर देता है वो करता क्या है? बोलता है। बादशाह खुद थोड़ी मकान बनाने जाएगा, यसीरतों को खुद थोड़ी तमीर करने जाएगा। क्या करेगा? ऑर्डर ही देगा। जब शरीर बोलता है तो मुल्क बर्बाद होते हैं। लिखा है 33 आयत, 16 बाब उसकी 33 आयत ने उसने यसीरतों को बनाया और वो सारे काम किए जो खुदावंद को गुस्सा दिलाने वाले हैं। अब 17 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है तब एलिया तिशबी। कौन? एलिया तिशबी। कितने लोग एलिया के बारे में जानते हैं? एलिया तिशबी जो कि जलादों में से था, जिलादों में से, खुदावंद के हुक्म से बादशाह के रूबरू खड़ा हो गया और कहने लगा खुदावंद बनी इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जब तक मैं न कहूं इस मुल्क में ना औस पड़ेगी ना बारिश होगी, ना औस पड़ेगी ना बारिश होगी। सो आप लोग जानते हैं कि 3 साल तक उस मुल्क में ना तो औस पड़ी, ना त्रेड़ पई ते ना मींह वरिया, ना त्रेड़ पई ते ना मींह वरिया। सुते के जागदे ते की नहीं पिया? ना त्रेड़ पई ते ना मींह पिया। वहां पर खुश्क साली छा गई। हाँ, मींह पिया तो बारिश भी पै गई। चलो खैर, कुछ ना कुछ बोलते रहे। बोलने से क्या होगा? आज हम बोलने के बारे में सीख रहे हैं। रास्तबाज जब बोलता है, रास्तबाज जब दुआ करता है, शहर क्या पाते हैं? मुल्क क्या पाते हैं? सरफराजी पाते हैं। लेकिन जब शरीर बोलता है तो बर्बादी छाना शुरू हो जाती है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम भी रास्तबाज बने? जब हम दुआ करें तो बीमार ठीक होना शुरू हो, जब हम दुआ करें अंधे देखना शुरू हो। कितने लोग चाहते हैं? सारे यहाँ हाथ खड़ा करता है। हुण जे त्यार चो किसी ने दुआ कर रही ठाता, किसी ने नहीं कर रही, क्योंकि शरीर बोलने की कोशिश करता है ताकि रास्तबाज दबा रहे। हालेलुया। जब खुदा ने एलिया तिशबी को हुक्म दिया कि जा अखीयब से कह, अखीयब से कलाम कर, उसके सामने रूबरू जा और उससे बोल कि अब बारिश होगी, तब एलिया अखीयब के सामने जा खड़ा हुआ। सबसे पहले एलिया उस इलाका से निकला है। रास्तबाज को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घर से निकलना पड़ेगा, जहां पर वो स्टे करके बैठा हुआ है, जिस कमरे में वो छुप के बैठा हुआ, जेड़े कमरे से वो लुक के बैठा है, वहां से निकलना पड़ेगा। सो बादशाह ने अपने जो दीवाने खास था, जो दीवान था, उसको ऑर्डर दिया कि मुल्क में खुशहाली है, मुल्क च कहत पै गया है,
एक तरफ मैं जाता हूँ ताकि कहीं से हरी घास नजर आ जाए, कहीं पे पानी नजर आ जाए और हम वहाँ पर देखकर अपने जानवरों को, अपनी गधियों को, अपने कचरों को, अपने घोड़ों को चरा सके, पानी पिला सके, ताकि वो तो जिंदा रह सके। एक तरफ तू जा अब्दिया, एक तरफ मैं जाता हूँ। तू इस तरफ तलाश कर, मैं इस तरफ तलाश करता हूँ। शायद कहीं घास मिले, शायद कहीं पानी मिले। रास्ते में अब्दिया को एलिया मिलता है और एलिया कहता है कि जाके अपने बादशाह से कह, अखीब से कह कि खुदा ने मुझे भेजा और मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, ताकि खुदावन तेरे मुल्क पर भला करे, मी बरसाए। हालेलुया। समझ नहीं आई तो ना ताड़ियां मारो, जब समझ आएगी वो दो ताड़ियां मारो। एलिया अब्दिया से मिलता है। अब्दिया क्या कहता है कि खुदावंद खुदा की हयात की कसम, मैं यहाँ से जाऊंगा एलिया के पास और तू गायब हो जाएगा। खुदा की रूह तुझे उठा कर ले जाएगी, मैं ढूंढता रह जाऊंगा। और तुझे किसने जता दिया कि इस गजब के पास मुझे भेजे? उसने तो पहले सारे मुल्कों में, सारी सल्तनतों में, सारे गाँव में तुझे ढूंढा, लेकिन तू कहीं ना मिला। और जिस मुल्क में गया, जिस इलाका में गया, वहां के लोगों से, वहां की कौम से उसने कसम ली कि अगर तेरे पास एलिया है तो बताने को कसम दे के नहीं है। अखीब हर मुल्क, हर इलाका में गया। क्यों? शरीर के मुंह से अल्फाज निकले थे जिसने उसे बर्बादी की तरफ धकेल दिया, उसके मुल्क को, उसके खानदान को, उसकी कुर्सी को, उसके ओहदे को। कहां पर? बर्बादी पर, बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गया। जब वो वहां से निकला, उसने कहा कि नहीं, खुदावंद की हयात की कसम, मैं गायब नहीं होऊंगा, बल्कि आज मैं उससे मिलूंगा। हालेलुया। अब दिया गया, उसने कहा कि एलिया तुझसे मिलना चाहता है। अखीब एलिया को दूर से देख के कहता है कि ए इस्राएल को सताने वाले, क्या तू है? ए इस्राएल को सताने वाले, क्या तू है? बात पर गौर करें। जो बर्बादी की तरफ धकेलता है वो इल्जाम दूसरों पर लगाता है, जिसके अल्फाज की वजह से, जिसके ऑर्डर की वजह से, जिसकी बातों की वजह से मुल्क बर्बादी की तरफ चला है, वो इल्जाम दूसरों पर लगाता है कि ए मुल्क को बर्बाद करने वाले, लोगों को सताने वाले, बनी इस्राएल कौम को सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया उसे जवाब देता है कि मैंने नहीं, बल्कि तूने और तेरे खानदान ने इस कौम को, इस मुल्क को, बनी इस्राएल कौम को सताया है। एलिया चला और उसने कहा कि आज तुझे पता चलेगा कि खुदा कौन है। रासबाज की दुआ से क्या होता है? क्या होता है? भैना जड़ियां आसे पासे वेखनियां, जरा इधर वेखो, दंदियां बाद च काट ले। रासबाज की दुआ से क्या होता है? शहर सरफराज होता है। दंदियां सरफराज नहीं होंदियां, शहर सरफराज होता है, लोग सरफराज होते हैं, मोहल्ला सरफराज होता है, वो इलाका सरफराज होता है, वहां का बादशाह सरफराजी हासिल करता है। हंसेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं खुदा के कलाम का, मेरा नहीं, खुदा के कलाम का, क्योंकि मैं बात जो कर रहा हूं वो खुदा के कलाम की कर रहा हूं। और यहाँ पर एक ऐसे नबी का जिक्र हो रहा है जिस नबी को आप जानते हैं कि खुदा का ऐसा नबी जिसको खुदा ने उठा लिया था। हालेलुया। जब एलिया अखीब के सामने हाजिर हुआ तो उसने कहा कि बालीम के 450 नबियों को और यसीतों के पुजारियों को, यसीतों के वो जो नबी हैं 400, उनको बुला कोहे किरमल की चोटी पर और हमें 2 बैल दे ताकि वो अपने लिए ज़िबा करें। जिस नबी का खुदा आग से जवाब देगा वो ही जिंदा खुदा होगा। सो जब वो 450 बाल के पुजारी, वो नबी, और 400 वो यसीरतों के नबी जब इकट्ठे हुए तो टोटल कितने बन गए? गिनती टोटल कितने बन गए? साढ़े पिछो नहीं आवाज आई, 850 नबी, 850 नबी जो बाल के पुजारी, 450, 400 यसीरतों के नबी अब इकट्ठे होके अब उनसे एलिया क्या कहता है कि तुम लोग ज्यादा हो, पहले तुम बैल को ज़िबा करो
اور اسے قربان گاہ پر چڑھاؤ۔ تم کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ تم کیا ہو؟ تسی بھی کی ہو؟ تسی بھی کی ہو؟ راست باز پڑھنا ہے کہ کی پڑھنا ہے؟ تسی کی ہو؟ 450 بال کے نبی، 400 یسیرتوں کے نبی، انہوں نے کیا کیا؟ بیل کو ذبح کیا، لکڑیاں چنی، اس کے اوپر قربان گاہ کے اوپر اس بیل کو جو ذبح کیا ہوا تھا رکھا۔ دوپہر تک پکارتے رہے، اے بال ہماری مدد کر، اے بال آگ سے جواب دے۔ دوپہر تک پکارتے رہے، کوئی جواب نہ آیا، کوئی آگ نہ آئی، کوئی چنگاری نہ آئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ جب دن ڈلنے لگا، دوپہر ڈلنے لگی، تو ایلیا ان سے کہنے لگا زور سے پکارو۔ کیا کرو؟ اوے زور نہ پکارو، کیا کرو؟ زور سے پکارو۔ آپ بھی زور سے پکارو۔ کیا کہا؟ آواز ہولی ہولی، کیا کہا؟ زور سے پکارو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہا ہو سکتا ہے وہ خلوت میں ہو سکتا ہے وہ سفر پہ ہو۔ یہ بال کے بارے میں ایلیا ان کو مذاق کر رہا ہے۔ تم اونچی آواز میں پکارو۔ ہو سکتا ہے بال دیوتا ہے، وہ خلوت میں ہو، وہ سو رہا ہو، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، زور سے بولو۔ لکھا ہے کلام خدا میں ان نبیوں نے اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا اور کودنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا اور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اے بال جواب دے، اے بال آگ سے جواب دے۔ لیکن شام تک کوئی جواب نہ آیا۔ تب ایلیا نے کہا کہ میرے پاس سب آ جاؤ۔ لوگوں سے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب راست باز بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ملک کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے۔ اب راست باز کے بولنے کو ہم دیکھیں۔ راست باز کیا کہتا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، اور اس نے کہا بیل کو ذبح کیا، اور اس نے کہا اس کے اوپر 4 مٹکے پانی کے ڈالو۔ اس قربان گاہ کے اوپر کیا کرو؟ 4 مٹکے پانی کے ڈالو، پھر ڈالو، تیسری دفعہ پھر ڈالو، ایون کہ ساری قربان گاہ پانی سے بھر گئی، اور وہ جو اس کے ارد گرد کھڈا کھودا گیا تھا اس کو بھی اس نے پانی سے بھروا دیا۔ اب خدا کے سامنے التجا کی، خدا نے آگ سے جواب دیا، اور اس آگ نے اس پانی کو، اس قربانی کو، اس کھڈے کو پانی سمیت چلا کر راکھ کر دیا، اور سب لوگ بول اٹھے کہ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ بال دیوتا سو رہا تھا، جواب نہیں مل رہا تھا۔ راست باز کا خدا جاگ رہا تھا، وہ جواب دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، راست باز جب دعا کرتا ہے، علاقہ، خاندان، ملک، گاؤں، قصبہ کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے۔ ایلیا نے دعا کی، ایلیا کے دعا کرنے سے می برسا، بارش آئی، ملک میں سرفرازی ہوئی، ملک کی ترقی ہوئی۔ کیا ہم آج پاکستان کی ترقی کا سبب ہے؟ کیا ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں؟ یا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بال دیوتا ہے، یہ جواب نہیں دیتا، یہ مہنگائی کرتا ہے، یہ بڑا گندا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ راست باز کی دعا سے بادشاہ بدل جاتے ہیں۔ بادشاہ کا دل جو پتھر دل ہے وہ موم ہو جاتا ہے، کیونکہ راست باز کی دعا سے سرفرازی آتی ہے۔ خواہ وہ ملک ہو، خواہ وہ خاندان ہو، کچھ بھی ہو، وہ گھر ہو، وہ علاقہ ہو، وہ قصبہ ہو، وہاں پر سرفرازی آتی ہے۔ سو آئیں سب مل کر ملک پاکستان کے لیے، سب راست باز اپنی آنکھوں کو بند کر کے 2 منٹ کے لیے ملک پاکستان کے لیے دعا مانگے، کیونکہ راست باز کی دعا سے ملک سرفرازی پاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خدا ان کی حضوری میں دعا مانگنا شروع کریں گے۔ سب آنکھوں کو بند کریں گے، جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں وہ آنکھوں کو بند کریں گے، اور جو شریر ہیں
जो शरीरों की तरह बोलते हैं वो अपनी बेशक आंखें खुली रखें, इर्द गिर्द देखें, दुआ ना मांगे, क्योंकि आपको अपने मुल्क से कोई लगाव नहीं है, आपको अपने मुल्क से कोई प्यार नहीं है, आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि आपका मुल्क, आपका गांव, आपका कस्बा, आपका शहर सरफराजी पाए। सब आंखों को बंद करके खुदा के हुजूर दुआ मांगेंगे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए, सारे डिफेंस अदारों के लिए, खुफिया अदारों के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, FIU के लिए, आर्मी स्टाफ के लिए, पुलिस के सारे अदारों के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, बका के लिए हमेशा जान देने तक वफादार रहें, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा खड़े रहें। खुदा बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा खादम, तेरा नौकर होते हुए अपने इस प्यारे वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस गांव के लिए, इस कस्बा के लिए, इस इलाका के लिए आसमानी बाप मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, इस इलाका में, इस मुल्क में सरफराजी को देकर सारी लानतों को, सारी परेशानियों को, सारे खुदा बाप बीमारियों को, दुखों को, मुसीबतों को, बेरोजगारियों को, खुदा बाप सियासतदानों की आपस में लड़ाइयों को, खुदा बाप सारे तफरीकों को, लड़ाइयों झगड़ों को, खुदा बाप तो अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से खुदा बाप इस मुल्क से, इस इलाका से दूर कर। इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क में खुदा बाप तेरा कानून राज हो खुदा बाप, जैसा तू चाहता है, क्योंकि खुदा बाप ये मुल्क खुदा बाप तेरी तरफ से दिया गया है, तेरी तरफ से अता किया हुआ एक गिफ्ट है खुदा बाप। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, इस मुल्क में खुदा बाप तू सरफराजी को खुदा बाप ला, इस मुल्क को इकबाल मंदी की तरफ लेकर जा खुदा बाप। ये मुल्क खुदा बाप हमेशा सलामत रहे, इस मुल्क के हुक्मरान खुदा बाप तेरी अक्ल से, तेरी दनाई से जो तू इनको अता करे खुदा बाप, उस अक्ल से, उस दनाई से इस मुल्क की भागदौड़ को संभाले खुदा बाप। इस मुल्क की खुदा बाप झंडियाँ, इस मुल्क का झंडा, इस मुल्क का खुदा बाप परचम हमेशा ऊंचा रहे खुदा बाप। इस मुल्क की तरफ कोई दुश्मन कभी आंख उठाकर देखने ना पाए, इस मुल्क में हमेशा बहाली रहे, सारी कहत साली खुदा बाप, सारी बेरोजगारी खुदा बाप, सारे तफरीके, सारे खुदा बाप लालच खुदा बाप, सारे खुदा बाप लड़ाइयाँ, सारे झगड़े तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से खुदा बाप इस मुल्क से दूर हो खुदा बाप। हमारे मुस्लिम बहन भाई खुदा बाप, हिंदू बहन भाई खुदा बाप, जितने खुदा बाप, जितनी कौमें इस मुल्क में आबाद हैं खुदा बाप, मैं उनके लिए तुझसे खुदा बाप मिन्नत करता हूँ खुदा बाप, तो उनको अपनी रहनुमाई में चला खुदा बाप, उनकी ज़िंदगियों में तू अजीब काम कर खुदा बाप। सारे खुदा बाप एक दूसरे से नफरत को खुदा बाप तू दूर कर, इस मुल्क में खुदा बाप तू अपना कानून राइज कर, इस मुल्क के हुक्मरानों में खुदा बाप आपस में मोहब्बत और प्यार हो खुदा बाप, ताकि ये लड़े नहीं, झगड़े नहीं, बल्कि सुलह और सफाई के साथ इस मुल्क की भागदौड़ को संभाले और ये मुल्क सरफराजी पाए खुदा। यीशु मसीह नासी के नाम से सारी दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुद